Okay, Assalamu alaikum. So this is our first lecture on product and portfolio analytics. So far we have covered market share as well as margins and profits. Our last topic covered was break-even analysis. In product and portfolio analysis, the first metric and the first topic that we'll be covering is volume projection. So whenever we are selling products in the market, or especially if we are launching new products in the market, one important factor to consider is that how much volume we are going to sell. And good prediction about the volume would help us basically produce the right amount of products and deliver and distribute the right amount of products into the market. So let's begin. Alright, so the first thing that we need to talk about is test markets in terms of new product development. आप सबको याद होगा that in product development process, somewhere around the end of the process, you have one step called test marketing or market testing. And in that step, what you do is that what you've created through your product development process, you try to test that product, that value that you've generated into the market. और उसके लिए basically it's important कि आप market में projection रखें कि जब आप market में test के लिए भी एक product को launch करते हैं तो वो product basically कैसा perform करेगा, उसकी कितनी quantity required होगी, कहाँ पर required होगी. So test markets and volume projections enable marketers to forecast sales by sampling customer intentions. So that's a very important point, that the main thing that you're concerned about are, or basically what you're going to measure are the customer intentions through surveys and market studies. By estimating how many customers will try a new product and how often they'll make repeat purchases, marketers can establish the basis for such projections. So दो चीज़ें यहाँ पर बड़ी important हैं, they are key in basically making these projections. Number one, that how many, this is the first part, how many customers will try a new product. So let's call them first time triers, ठीक है, जो पहली दफ़ा आपका product try करेंगे, and how often they'll make repeat purchases. और ये basically आपके repeat buyers हैं, ठीक है, जो कि repeatedly आपका product purchase करते हैं ना. एक बात याद रखें कि जब आप एक नया product launch करते हैं, so yes, it's pretty obvious to see कि there would be people who would be buying your product for the first time. ठीक है, in fact everybody would be the person who would be buying your product for the first time अगर वो पहली दफ़ा मार्केट पे लॉन्च हुआ है. However, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में 6 महीने, साल, 5 साल, 6 साल से भी अवेलेबल है, तो तब भी there would be people who could be categorized into this category of first trials. Just think about it. आप सबके घर पे split ACs लगे हुए हैं, किसी के घर पे लेट्स से ग्री ब्रांड का एसी होगा, किसी के घर पे मित्सुबिशी होगा, किसी के घर पे केनवुड होगा, किसी के घर पे पेल होगा. अक्सर लोग जो हैं वो मल्टीपल ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, ओरिएंट भी है और डाउलेंस भी है और ग्री भी है, ठीक है. लेकिन देर आर वेरी फेमस ब्रांड, जैसे अब आप केनवुड की बात कर लें एंड वन ऑफ यू डोंट हैव अ केनवुड एट होम, और आप जब केनवुड जो कि एक बड़ी पुरानी कंपनी है, बड़े अरसे से पाकिस्तान में एसीज और बाकी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आप अगर उनका प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सो यू टेक्निकली आर देयर फर्स्ट, यू टेक्निकली आर वन ऑफ दोज कस्टमर्स जिनको वो फर्स्ट ट्रायल्स में बेसिकली प्रोडक्ट करेंगे. सो फर्स्ट ट्रायल्स का मतलब कतन ये नहीं होता कि ये सिर्फ वो लोग होंगे जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के टाइम पर प्रोडक्ट परचेज करेंगे. फर्स्ट ट्रायल्स आर दोज पीपल जो पहली दफ़ा आपका ब्रांड आपसे परचेज कर रहे हैं. ऑलराइट, सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स. By constructs I mean two important concepts जिनका हमें बेसिकली यहाँ पर ख्याल करना है. One is trial rate. So what is the trial rate? Trial rate definitely वही लोग हैं जो कि first time आपके buyers हैं, ठीक है. So it's the percentage of customers who buy for the first time. And second is repeat rate. So repeat rate is the percentage of customers who buy more than once. Now ये भी याद रखें, ये समझना ज़रूरी है कि एक शख्स जो कि आपसे ट्रायल करता है, पहली दफ़ा लेता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे दोबारा भी परचेज करे. वंस अगेन लुक एट द ब्रांड ऑफ लेट्स से एयर कंडीशनर दैट यू हैव,
ठीक है. Look at the brand of detergents that you use. Look at the brand of soaps that you use. So कई लोग हैं जो कि लॉयल होते हैं, वो एक ही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, ख्वाह वो AC है या वो साबुन है या वो डिटर्जेंट है. बट देयर आर पीपल टू whom these brands don't matter. So उनको कभी कोई एड अच्छा लगेगा, कभी पैकेजिंग बेहतर लगेगी, कभी प्राइस बेहतर लगेगी, कभी किसी किस्म का कोई प्रमोशनल ऑफर बेहतर लगेगा और वो उसकी बेसिस पे ब्रांड स्विच कर लेंगे. सो इसका मतलब ये है कि रिपीट रेट जो है इट्स नॉट नेसेसरीली 100%. सो अच्छी जो कंपनीज हैं, अच्छी जो ब्रांड्स हैं, उनकी कोशिश हमेशा यही होती है कि वो रिपीट रेट को बेसिकली इम्प्रूव करें सो दैट उनके जो कस्टमर्स का जो टर्नओवर है या फिर जो उनकी जो रिपीट रेट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके और कस्टमर्स की जो लाइफ टाइम वैल्यू है उसको इम्प्रूव किया जा सके. बाय द वे लाइफ टाइम वैल्यू पर भी हमने बात करनी है, उस मेट्रिक को भी हमने बेसिकली सीखना है, बट उसके लिए हमें 1-2 वीक्स मजीद रुकना पड़ेगा. ऑलराइट, सो जो 2 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं इन वॉल्यूम प्रोजेक्शंस, दे आर ट्रायल रेट एंड रिपीट रेट. ऑलराइट, सो वी आर इंटरेस्टेड इन ट्रायल वॉल्यूम. सो इस जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स अभी चलेंगी 2-3 पार्ट्स जो इसके लिए बनेंगे वॉल्यूम प्रोजेक्शन के लिए, उसमें हमारा जो बॉटम लाइन है, जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, दैट्स दिस टोटल वॉल्यूम. सो व्हाट इज दिस टोटल वॉल्यूम? Total volume is the sum of trial volume and repeat volume, as all volume must be sold to either new customers or returning customers. So ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपके ट्रायल कस्टमर्स होंगे, फर्स्ट टाइम ट्रायल्स होंगे, या फिर आपके रिपीट कस्टमर्स होंगे जिनको रिटर्निंग कस्टमर्स भी कहा जाता है. सो डेफिनेटली आपका जो फॉर्मूला होगा टोटल वॉल्यूम का, दैट वुड बी टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रायल वॉल्यूम प्लस रिपीट वॉल्यूम. नाउ सीमिंगली ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ठीक है. आप ट्रायल वॉल्यूम कहीं से निकाल लेंगे और रिपीट वॉल्यूम कहीं से निकाल लेंगे, दोनों को आपने ऐड करना है. बट थोड़ा सा जब अभी हम आगे जाएंगे, सो ट्रायल वॉल्यूम जो है उसको कैलकुलेट करने में कुछ टेक्निकलिटीज आती हैं, कुछ चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत एक्सपैंड हो जाएगा. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रायल वॉल्यूम. पहले हम ट्रायल वॉल्यूम पर बात करेंगे, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है रिपीट वॉल्यूम, उस पर बात करते हैं, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रायल वॉल्यूम. जी, सो ट्रायल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए द वन थिंग दैट यू नीड इज बेसिकली वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड इज ट्रायल रेट, ठीक है. इट वुड मेक सेंस कि अगर आपने किसी चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सो उसका आपको रेट पता होना चाहिए, ठीक है. बाय रेट आई मीन कि क्या परसेंटेज है उसका, कितने परसेंट से बेसिकली हर महीने हर साल जो है नए लोग जो हैं वो आपका प्रोडक्ट ट्राई करते हैं. सो द परसेंटेज ऑफ अ डिफाइंड पॉपुलेशन that purchases or uses a product for the first time in a given period is loves defined से घबराए मत. This is here it's synonymous to targeted, ठीक है ना. You can call it targeted population. So the percentage of targeted population that purchases or uses a product for the first time in a given period, ठीक है. So एक खास टाइम पीरियड में, याद रखें एक टाइम पीरियड की आप बात करते हैं, एक खास टाइम पीरियड में जो पहली दफ़ा जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं उनको आप टोटल टारगेट मार्केट से जब कंपेयर करते हैं, अब आपको अंदाज़ा होगा कंपैरिजन का मतलब क्या है, इट्स डिवीजन. सो उसको आप ट्रायल रेट कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, फर्स्ट टाइम ट्रायल्स इन पीरियड टी, जो भी आपका पीरियड टी है, ठीक है, क्वार्टर 1 है, ये मंथ 1 है, ईयर 1 है, जो भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. वंस अगेन दैट वुड बी टोटल टारगेटेड पॉपुलेशन. फाइन. So once again, it's a very nice and simple and intuitive formula, most of all, कि आप फर्स्ट टाइम ट्रायल उठाएंगे, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन में प्लग इन कर देंगे. अब एक सवाल ये पैदा होता है कि टोटल टारगेटेड पॉपुलेशन तो चले हमारे कस्टमर प्रोफाइल से पॉसिबली आ जाए, ठीक है, हमारी मार्केट रिसर्च में बता दे. ये फर्स्ट टाइम ट्रायल्स का हमें कैसे पता चलेगा? स्पेशली देखें ना, यहीं पे वो बात आती है कि पुराने प्रोडक्ट्स के हवाले से तो मे भी हमारे पास डाटा हो, हमें अंदाज़ा हो, हम रिग्रेशन रन करें, कोई और स्टेटिस्टिक रन करें, में अंदाज़ा हो जाएगा. लेकिन अगर एक प्रोडक्ट नया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि जी हमारे आने वाले मंथ में जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसके लिए हमारा ट्रायल रेट का बेस्ट एस्टिमेट क्या है, ठीक है. तो ये फर्स्ट टाइम ट्रायल्स का फिगर हमारे पास कहां से आएगा? सो ऑफ्टन इट्स एस्टिमेटेड थ्रू सर्वेज. सो आप अक्सर सर्वेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसको एस्टिमेट करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट डज दिस सर्वे लुक लाइक. So trial rates are often estimated on the basis of survey of potential customers, ठीक है ना. आपके जो potential customers होते हैं, जो आपकी टारगेट मार्केट होती है, वहाँ पर जाकर आप सर्वे करते हैं और आप इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि
जो भी आने वाला वक्त है, टाइम पीरियड टी है, उसमें पॉसिबली बेस्ट एस्टिमेट क्या है, ये एक रियलिस्टिक, इनफैक्ट बेस्ट से बेहतर वर्ड है, एक रियलिस्टिक एस्टिमेट क्या है कि कितने लोग आपका ट्रायल कर सकते हैं आउट ऑफ योर टोटल टारगेट पॉपुलेशन. टिपिकली दीज सर्वेज आस्क रिस्पोंडेंट्स वेदर दे विल डेफिनेटली और प्रोबेबली बाय अ प्रोडक्ट. ठीक है. सो आपने अक्सर देखे होंगे डिफरेंट क्वेश्चनियर्स, उनमें आपको एक लाइकेट स्केल दिया जाता है 1 2 3 4 5. आपने उसको बेसिकली कैटेगराइज करना होता है आंसर को. ठीक है. तो यहाँ पर भी एक लाइकेट स्केल दिया जाता है जिसकी जो पहली दो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज होती हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज होती हैं वो हैं डेफिनेटली और प्रोबेबली. ठीक है. एज दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट of several possible outcome responses to questions of purchase intention, they are sometimes referred to as top two boxes. The less favorable response in a standard 5 choice survey include may or may not buy, probably won't buy, and definitely won't buy. ठीक है. So this is what this questionnaire would look like. So आपका सवाल का prompt होगा which of the following best describes your intention for buying a product, और उसमें बेसिकली ये 1 2 3 4 एंड 5 ऑप्शंस होते हैं. डेफिनेटली विल बाय, प्रोबेबली विल बाय, मे बाय, मे नॉट बाय, डेफिनेटली वोंट बाय. ठीक है. अब इसमें ये जो आपको इंसर्कल्ड जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इनको यहाँ पर हमने ये टॉप 2 बॉक्सेस कहा था. ठीक है. सिंस दीज आर द टॉप 2 बॉक्सेस, यू वुड वांट मोस्ट ऑफ द पीपल टू फॉल इन दीज 2 बेसिकली बॉक्सेस. सो ये आपका जो मेन फोकस होता है वो यहीं पर होता है. एंड बाय मेन फोकस ये है कि अक्सर आप इन्हीं को कंसिडर करते हैं. अगर कोई आपको इवन सर्वे में मे बाय, मे नॉट बाय, डेफिनेटली वोंट बाय स्पेशली अगर कह रहा है, सो दैट मीन्स के देयर आर वेरी फ्यू चांसेस that person is going to, or that customer is going to turn up when your product would be available in the market for sale. ठीक है. सो अपने एस्टिमेट्स को रियलिस्टिक रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इन 2 रिस्पॉन्सेस को प्राइमरीली कंसिडर करते हैं. ठीक है. बट कंज्यूमर रिपोर्टेड इंटेंशंस आर नॉट एन एक्यूरेट प्रेडिक्टर ऑफ देयर फ्यूचर बिहेवियर, सो वी नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट्स. अब देखिए एक बात याद रखें, one weakness with surveys is that sometimes people respond just to maybe make the other person happy, or just to basically get rid of the surveyor, the researcher, the enumerator जो कि basically data collect कर रहा होता है, और उसको मे बी बाज़ वो ऐसा जवाब देते हैं जो कि वो सुनना चाहते हैं. ठीक है. सो दैट्स वाई, चूँकि इस किस्म के रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं जो कि रिस्पोंडेंट्स अक्सर आपको देते हैं जो कि दैट दे डोंट एक्चुअली मीन टू, सो उसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं. ठीक है. सो ट्रायल रेट आपने देख लिया है. ट्रायल रेट क्या है? ट्रायल रेट में आपने फर्स्ट टाइम ट्रायल्स को टोटल टारगेटेड पॉपुलेशन से डिवाइड करना है. ठीक है. सो लेट्स से मैं अगर यहाँ पर आपको एक रफ एग्जांपल दे दूँ, लेट्स से अगर आपने ट्रायल रेट कैलकुलेट करना है, लेट्स टॉक अबाउट ट्रायल रेट इन परसेंटेज, एंड लेट्स से आपकी टोटल टारगेटेड पॉपुलेशन में 10,000 हाउस होल्ड्स हैं. ठीक है. 10,000 कस्टमर्स हैं, और उनमें से लेट्स से आपके सर्वे के मुताबिक आई डोंट नो 1,000 जो कस्टमर्स थे, दे सेड दैट वी विल डेफिनेटली बाय और वी विल प्रोबेबली बाय योर प्रोडक्ट व्हेन इट्स अप फॉर सेल इन द मार्केट. सो दैट मीन्स कि आपका जो ट्रायल रेट है वो प्रोबेबली 10% है. सो दैट्स ऑल टू ट्रायल रेट. ये आपका एस्टिमेटेड ट्रायल रेट है. ठीक है. ओके. अब इन एडजस्टमेंट्स को देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स क्या हैं. जैसे कि अभी हमने ये 10% निकाला, हमें लेट्स से जैसे मैंने कहा कि 1000 लोगों ने हमें बोला कि जी हम डेफिनेटली प्रोबेबली बाय करेंगे, तो क्या हम ये 1000 के 1000 लोग ले लें, हम ये सोच लें कि क्या वाकई में ये लोग डिड दे मीन व्हाट दे सेड व्हेन दे रिस्पोंडेड टू आवर क्वेश्चन? सो मे बी नॉट. So let's see कि how do we basically made this adjustments and how do we make our estimates more realistic. All right. So these are the adjustments to trial rate. आपने बेसिकली अपने ट्रायल रेट पर कुछ एडजस्टमेंट्स अप्लाई करनी होती है. तो सबसे पहले टाइप की एडजस्टमेंट है, इट्स कॉल्ड द फॉलो थ्रू एडजस्टमेंट. ठीक है. सो बिकॉज नॉट ऑल रिस्पोंडेंट्स फॉलो थ्रू ऑन देयर डिक्लेयर्ड परचेज इंटेंशन, firms often make adjustments to the percentages in the top 2 boxes in developing sales projections. ठीक है.
चूँकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं, प्रॉबली विल बाय, प्रॉबली डेफिनेटली विल बाय, ठीक है। सो यू डोंट वांट एन ओवर एस्टिमेटेड फिगर्स फॉर योर ट्रायल रेट। तो आप क्या करते हैं, आप बेसिकली इन दोनों बॉक्सेस को या इन दोनों रिस्पॉन्सेज को थोड़ा सा टोन डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम मार्केटर्स एस्टिमेट दैट 80% ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स हु से they'll definitely buy and 30% of those who say that they'll probably buy will in fact purchase a product when given the opportunity. So हो क्या रहा है कि 80% लोग अक्सर ये, again this has become sort of a industry, in certain industry it has become a standard कि जितने आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं डेफिनेटली बाय के और जितने आपको रिस्पॉन्डेंट्स मिलते हैं प्रॉबली बाय के, तो आप उसको इस मल्टीप्लायर के साथ बेसिकली ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और बेसिकली आप उन रिस्पॉन्सेज को खाली कंसिडर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले जो एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने कहा था कि जी अगर लेट से इन दोनों को कंबाइन करके 1000 लोग आपको कहते हैं कि जी वील डेफिनेटली बाय और वील प्रोबेबली बाय। सो ये 1000 भी कैसे डिवाइडेड है, लेट से ये 500 आपके पास यहाँ पर लोगों ने कहा कि जी वील डेफिनेटली बाय एंड 500 लोगों ने यहाँ पर कहा वील प्रोबेबली बाय, ठीक है। सो वी वोंट टेक द होल 1000, व्हाट वी डू इज हम बेसिकली 500 को का 80% एंड 500 का यहाँ से 30% उठाएंगे, ठीक है। सो 500 का 80% यहाँ से वुड बिकम 400 रिस्पॉन्सेज और दिस वुड बी रिड्यूस टू 150 रिस्पॉन्सेज। सो नाउ इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, जैसा हमने पिछली स्लाइड में डिवाइड किया था, 1000 को हमने 10,000 कंज्यूमर से डिवाइड किया था, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस नाउ वील डिवाइड 550 विद 10,000। नो डाउट हमारा न्यूमरेटर रिड्यूस हो गया है, लेकिन याद रखें अब हमारी जो एस्टिमेट्स हैं दे आर मच मोर रियलिस्टिक एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो आपकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो खाली फॉलो थ्रू तक नहीं रुकती, उसके अलावा भी देर आर फैक्टर्स जो कि बेसिकली ट्रायल रेट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स इज अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। सी प्रोडक्ट ए कंपनी नंबर 1 प्रोडक्ट ए लॉन्च करती है, कंपनी नंबर 2 प्रोडक्ट बी लॉन्च करती है, ठीक है। तो क्या और वो सेम टारगेट मार्केट के लिए लॉन्च करते हैं विद एट सेम प्राइस, तो क्या लोग दोनों को परचेज करेंगे? डिपेंड करता है फॉलो थ्रू रेट पे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट दे हैव पुट इनटू द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो आपने बेसिकली प्रोडक्ट या ब्रांड की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रांड अवेयरनेस, उसको भी बेसिकली अकाउंट फॉर करना है कि हाउ वेल अवेयर पीपल आर अबाउट द न्यू ब्रांड। So sales projection models include an adjustment for lack of awareness of a product within the target market. Lack of awareness reduces the trial rate because it excludes some potential customers who might try the product but don't. ठीक है ना? So अगर लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है आपके ब्रांड के बारे में, ठीक है ना, ब्रांड अवेयरनेस अगर आपकी ज़्यादा है ही नहीं, तो people are not going to basically find your product or buy your product. So एक और जो एडजस्टमेंट वी मेक टू द ट्रायल रेट इज द ब्रांड अवेयरनेस एडजस्टमेंट, ठीक है, और एडजस्टमेंट टू ब्रांड अवेयरनेस। सो आप बेसिकली मार्केट में ब्रांड अवेयरनेस कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं वंस अगेन थ्रू सर्वेज, और जो भी उसका परसेंटेज आता है, लेट्स से यू आस्क 100 पीपल एंड 55 पीपल नो अबाउट योर प्रोडक्ट। सो आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस का जो मेट्रिक है वो 55% है, ठीक है। सो आप अपने ट्रायल रेट को मजीद 55% के साथ ज़रब दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जी ये काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड होता जा रही है, फिगर जो है आपका ट्रायल रेट का वो छोटा होता जा रहा है, बट दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन द मार्केट। वन फाइनल एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सो याद रखें आपका प्रोडक्ट नया है और आप हमेशा डिपेंड करते हैं रिटेलर्स पे, ठीक है। रिटेलर्स जो हैं दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी टू स्टॉक प्रोडक्ट्स जो कि फेमस होते हैं, जो कि जिनको वो अपनी ज़ुबान में चले हुए प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। उनकी अच्छी खासी ब्रांड अवेयरनेस होती है, ब्रांड लॉयल्टी होती है, ठीक है। सो दे वुड वांट टू इन्वेस्ट इनटू प्रोडक्ट्स जो कि जिनकी अवेयरनेस भी ज़्यादा है और जो कि जैसा मैंने बताया कि वो चले हुए प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बट इफ़ यू ट्राई टू स्टॉक अ न्यू प्रोडक्ट, जितने भी रिटेलर्स हैं वो डेफिनेटली थोड़े बहुत रिलक्टेंट होते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी कंपनी कितनी इम्पॉर्टेंट है उन रिटेलर्स के लिए,
कितना ज़्यादा आप उनको बिजनेस देते हैं, कितना बेहतर उनको आप मार्जिन देते हैं, हाउ गुड योर ट्रेड डिस्काउंट्स आर, अ लॉट ऑफ थिंग्स गो इनटू दीज रिलेशनशिप्स. सो आपने इस रिलेशनशिप को भी बेसिकली एडजस्ट करना होता है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होता है, मेनली जो रिटेलर्स के साथ होता है. सो इवन सर्वे रिस्पोंडेंट्स who say they'll definitely try a product are unlikely to do so if they can't find it easily. So see, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है नए प्रोडक्ट की, ठीक है, सो इवन वो लोग जिन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया होगा कि जी दे विल डेफिनेटली बाय एंड दे मेंट इट एक्चुअली, वो कहाँ से परचेज करेंगे अगर उनकी क्लोज विसिनिटी में या उनकी अप्रोच में वो प्रोडक्ट नहीं होता. सो दैट्स वाई जो एक्चुअल ट्रायल है उसके लिए आपने जो उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन को भी एडजस्ट करना होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो शॉर्टफॉल होता है उसकी भी एडजस्टमेंट्स करनी होती है. सो इन मेकिंग दिस एडजस्टमेंट कंपनीज टिपिकली यूज एन एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन a percentage of total stores that will stock the new product. ठीक है ना, a percentage of total stores that will stock the new product, such as ACV. ठीक है, all commodity volume. So all commodity volume का मेट्रिक अभी तक आपने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है. अगर जब हम सेल्स को कवर करेंगे तो उसमें ACV की बात होगी. सो भी इसको रहने दें. अभी आप इसको ऐसे समझ लें कि इस परसेंटेज से आपको ये पता चलता है कि कितने परसेंट जो आपके रिटेलर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को स्टॉक कर रहे हैं. सो आउट ऑफ वंस अगेन लेट्स से अगर आउट ऑफ 10 अगर 6 रिटेलर्स आपके प्रोडक्ट को स्टॉक कर रहे हैं तो आपका जो बेसिकली ACV का जो परसेंटेज बन जाता है वो 60% हो जाएगा. ठीक है ना. सो बाकी की जो 40 दुकानें हैं अगर उनके आसपास वो लोग रहते हैं जो जिन्होंने कहा था जी हम डेफिनेटली बाय करेंगे, और वो जो एक्चुअली बाय करना भी चाहते हैं, ट्रायल करना भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनकी एक्सेस में प्रोडक्ट नहीं होगा. सो दीज आर द 3 एडजस्टमेंट्स दैट यू हैव टू मेक टू योर ट्रायल रेट. सो याद रखें, इफ आई गो बैक, हमारा ट्रायल रेट बड़ा सिंपल सा था. ठीक है, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर में फर्स्ट टाइम ट्रायर्स थे इन पीरियड टी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल टारगेट पॉपुलेशन थी. बट आफ्टर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट्स हमारा ट्रायल रेट या एडजस्टेड ट्रायल रेट जिसको हम कहेंगे, ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल रेट वो कुछ ऐसा हो जाएगा. एक तो आपका आ जाएगा ट्रायल रेट. ठीक है, और याद रखें इसमें इस ट्रायल रेट में फॉलो थ्रू एडजस्टमेंट हुई होगी. ठीक है, इसमें आपने फॉलो थ्रू एडजस्टमेंट करनी है. फॉलो थ्रू एडजस्टमेंट अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि जो टॉप 2 बॉक्सेस होते हैं, टॉप 2 बॉक्सेस, ठीक है, उसमें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 80% का फॉर डेफिनेटली बाय एंड 30% है प्रॉबेबली बाय. ठीक है, सो ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद बेसिकली आपका ट्रायल रेट यहाँ पर आएगा. उसके बाद आपने अवेयरनेस का परसेंटेज याद हो तो मैंने आपको ब्रांड अवेयरनेस की बात की थी कि मे बी अगर आपका ब्रांड अवेयरनेस 60% है, साथ ही साथ ACV अगर आपका लेट्स से आई डोंट नो फर्दर 60% है, ठीक है, या वट एवर फिगर इट इज, सो वो यहाँ पर आ जाएगा. सो लेट्स से आपका ट्रायल रेट आफ्टर दीज आफ्टर मेकिंग फॉलो थ्रू एडजस्टमेंट्स अगर इट्स लेट्स से आई डोंट नो 70%. सो ये बेसिकली आपका एडजस्टेड ट्रायल रेट बनेगा. सो नाउ यू कैन सी कि काफ़ी हद तक हमने इसको टोन डाउन कर लिया है. इसको जितना कोशिश हो सकती थी रियलिस्टिक बनाने की, इसको हम रियलिस्टिक बना रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं ट्रायल वॉल्यूम की. सो आफ्टर मेकिंग दीज मॉडिफिकेशंस marketers can calculate the number of customers who are expected to try the product. So अभी तक याद रखें, अभी हम वो टोटल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे. दिस इज ट्रायल वॉल्यूम. डोंट कंफ्यूज इट विद द फर्स्ट फॉर्मूला जिसकी हमने बात की थी लेक्चर के स्टार्ट में. दैट वाज टोटल वॉल्यूम जिसमें रिपीट परचेजेस और ट्रायल परचेजेस आ रही थी. दिस इज ओनली द, ये उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज द ट्रायल वॉल्यूम. ठीक है, सो आपने बेसिकली ट्रायल पॉपुलेशन नंबर 1 आपने कैलकुलेट करनी है कि आपकी ट्रायल पॉपुलेशन है कितनी. सो हाउ यू गो अबाउट दिस इज कि आप ये देखते हैं कि जी आपकी टारगेट पॉपुलेशन कितनी है. सो टारगेट पॉपुलेशन लेट्स से जैसे हमने बताया उस एग्जांपल में, लेट्स से आपकी टारगेट पॉपुलेशन इज 10,000 कंज्यूमर्स और एडजस्टेड ट्रायल रेट आपका कितना है. सो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, जो हमने थोड़ी देर पहले एक फिक्टिशियस किस्म का एडजस्टेड ट्रायल रेट लिया था, बट दैट वाज 70 बाय 60 बाय 60%. ओके, ठीक है, एंड यू मल्टीप्लाई दीज टू एंड दिस गिव्स यू योर ट्रायल पॉपुलेशन.
याद रखें, दिस इज योर ट्रायल पॉपुलेशन, दिस इज नॉट योर ट्रायल वॉल्यूम. ट्रायल वॉल्यूम वुड बी द अमाउंट ऑफ सेल्स जो कि ये एस्टिमेटेड ट्रायल पॉपुलेशन आपको देगी. याद रखें, ट्रायल वॉल्यूम वुड बी द अमाउंट ऑफ सेल्स जो कि ये बेसिकली एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आपको देगी. ट्रायल वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्रायल पॉपुलेशन, ठीक है, जो यहां से आएगा, एंड यूनिट्स पर परचेज. सो इट्स पॉसिबल कि कोई अगर आपके प्रोडक्ट का ट्रायल रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बेसिकली सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लें, हो सकता है 2 उठा लें, हो सकता है 3 उठा लें. यस, ये एक कॉमन नॉलेज है, और मैं अक्सर क्लास में जब कभी भी ऐसा कोई टॉपिक आता है उसका जिक्र करता हूँ कि जब कभी भी ट्रायल होता है तो लोग बल्क में प्रोडक्ट नहीं उठाते, छोटे पैकेजेस में उठाते हैं, छोटे पीसेस उठाते हैं, ठीक है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही पीस उठाएं, एक ही सिंगल जो पैकेज आपने सेल करने के लिए रखा है वही उठाएं. सो मल्टीपल पैकेजेस भी उठा सकते हैं, ठीक है. बट वंस अगेन ज़्यादा वॉल्यूम डेफिनेटली पर परचेज नहीं होगा. सो यूनिट्स पर परचेज, दिस वुड बी एन एवरेज्ड अमाउंट. ऑन एवरेज आपके ख्याल में कितने लोग परचेज करेंगे, ठीक है. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू, याद रखें एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, वो क्या है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की हमने बात नहीं की, ठीक है. यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की. फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि वो कितनी दफ़ा परचेज करेंगे. देखें ना, अगर ट्रायल पॉपुलेशन एक ही यूनिट परचेज करती है 3 दफ़ा, तो फिर 3 दफ़ा या 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होगी. बट याद रखें, दिस इज़ ट्रायल वॉल्यूम. यहाँ पर एक अजम्पशन ये है कि दिस इज़ ट्रायल, सो लोग मोस्टली एक ही दफ़ा ट्राई करेंगे. दूसरी दफ़ा अगर उन्होंने परचेज करना हुआ तो वो रिपीट परचेज के तौर पे करेंगे. हाउ एवर देर आर सर्टन सिचुएशंस इन द मार्केट जहाँ पर बाज़ का कंज्यूमर्स जो होते हैं वो 2 दफ़ा भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है और वो काफ़ी हद तक नेग्लिजिबल है. तो हमारी यहाँ पर अजम्पशन ये है कि ट्रायल जो होगा वो सिर्फ एक ही दफ़ा होगा. दैट्स वाई हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है. फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू 1. सो दैट्स स्टिल नाउ दैट्स ऑल अबाउट ट्रायल वॉल्यूम. जो फर्स्ट पार्ट था टोटल वॉल्यूम का, ट्रायल वॉल्यूम, वो हमने कैलकुलेट कर लिया.